Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning economics of standard 11th GSEB board, okay, Gujarat board. Now, we have completed 7 chapters in this particular subject, economics. But today we are going to start with our new chapter, that is economic reforms. Chapter 8, economic reform for the particular subject, economics. So here we will be discussing about what are the economic, how our economy has been changed from which particular year the economy has been changed or drastic change is been seen, what were the new policies, what were the new different reforms were being made, revolutionary change which were being made by the government, and some of the decisions taken by the government which help our economy to grow very well from 1991. So that particular thing we are going to learn here in this chapter, that is economic reform. So very first you find it in our first lecture, that is introduction. You will be learning, you will be getting that what is exactly economic reform, why there is a requirement for economic reform. Pehli cheez, after independence there was major role was about the public sector, because our public sector was getting developed. They were spending because no other private person was having that much amount of money. So public sector has taken initiative and they started the key industries, basic key industries like iron and steel, aluminium. So different places this particular big basic industry, basic मतलब जो raw material हमको मिलता है वो industries उन लोग ने चालू की. Then they started with different types of वी कैन से केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. तो ये सब चीज़ों से थोड़ा मशीनरी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आया 1956 से, सेकेंड 5 ईयर प्लान से. एंड देन आफ्टर वी हैव सीन दैट पब्लिक सेक्टर वॉज बीन ग्रोइंग अप. बट फ्रॉम 1947 और 1951 से लेकर 1990 तक our what was the goal for the Indian economy and how they have forecasted. जो 5 ईयर प्लान बनते थे उन लोग ने कैसे फोरकास्ट करके कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैसे पॉवर्टी को कम करना, कैसे इनकम इनक्वालिटी को बैलेंस करना. सो ऑल दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस मेजर इश्यूज वर थे, वो पर्टिकुलर पे फोकस करके कितना अचीवमेंट किया, वो अचीवमेंट नहीं मिला. सो यू फाइंड हियर दैट कि द प्लानिंग or we can say the policies which were adopted earlier 1990, or we can say after independence till 1990 were failed, have become a big failure for our country. And for that's why, for that's the reason that that particular time in 1990 we were in the very much deficit के अंदर थे हम. सो डेफिसिट मतलब देर वॉज अ लैकिंग ऑफ मनी फॉर द गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो कंट्री रन कर सके इतना है. So for that time you find that for economic growth and development there were certain norms and different we can say decisions were taken up, policies were made, and in that particular thing they have made this economic reform. So how this economic reform came वो हमको आगे जाके पता चले. उससे पहले 90s की बात करें, 80s की बात करें, तो वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो पूरी फेल हो चुकी थी. क्लियर. अगेन वी फाइंड दैट डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं रहा. सो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग मेड अ प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी और द गवर्नमेंट टू चेंज द पॉलिसी. एंड देन आफ्टर they brought what, they brought economic reform. क्यों भाई? Because the main reason was the trade deficit मतलब you find that कि हमारा foreign imports बहुत ज़्यादा होते थे, means the imports were more for our country rather than the export. So export was only agricultural goods की ज़्यादा रहते थे क्वांटिटी के अंदर, और इंडस्ट्रियल गुड्स कम रहते थे, और उसके अंदर भी हमको इतने पैसे नहीं मिलते थे. क्लियर. अगेन यू फाइंड दैट कि जो फॉरेन, बिकॉज वी वर लैक इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एडवांस नहीं थे, गैजेट्स के अंदर एडवांस नहीं थे. सो ऑल दिस मशीनरीज, हैवी मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वर बीन परचेज और इम्पोर्टेड फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज. तो हम डीलिंग ज़्यादा करते थे फॉरेन के पास से ज़्यादा लें, सो वी हैव टू पे देम. सो देर वॉज अ ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो करते हैं, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसका एक अकाउंट, एक स्टेटमेंट बनता है जिसके अंदर हमको पता चलता है कौन सी कंट्री को कितना देना है, कौन सी कंट्री को कितना लेना है, उन लोग ने कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसे का we can say लेन देन किया. So balance of trade which has been there, where accounting statement shows the how much income and expenditure on import and export is been there, and from that the deficit, or at the end of the year वो लोग
तय करते हैं कि कितना पेमेंट कौन सी कंट्री को दूसरी कंट्री को पे करना है. सो दिस वर द थिंग्स विच वर बीन देयर एंड इन दैट आवर कंट्री वॉज बीन इन अ डाउन, गोइंग डाउन एंड डाउन. मतलब वो डेफिसिट, इतने पैसे ही नहीं थे, हम ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे थे, हमारे पास इतनी कुछ नहीं टेक्नोलॉजीज नो हाउ टेक्नोलॉजीज आइडियोलॉजीज नहीं थी, तो वो परचेज करने में हम डेफिसिट में चले गए. सो आफ्टर दैट 1991 के अंदर दे हैव टेकन अ हार्ड डिसीजन एंड दे मेड इकोनॉमिक रिफॉर्म वेयर दे इंट्रोड्यूस थ्री थिंग्स. They introduced three things, that is liberalization, privatization and globalization. So your economic reform talks about these three things, LPG, okay, that is liberalization, privatization and globalization. But as per your reduced syllabus, only privatization you have been studying, liberalization and globalization आपको अभी ये दोनों टॉपिक निकाल दिया गया. Even the objectives of this particular economic reform has been deducted from your syllabus. So today we are going to learn only about privatization and the process of privatization. Again, in the second thing, you are going to learn only two topics in this particular chapter, that is privatization and the process, and the FDI, foreign direct investment. So what policy made in 1991 में briefly तुम लोग को बताने वाला हूँ. यहाँ पे introduction यहाँ पे लिखा नहीं है, but the इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर ज़्यादातर दे हैव फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड सम ऑफ द थिंग्स. सो लिबरलाइजेशन मीन्स दे हैव गिवन सो मेनी डिफरेंट, वो लोग ने छूट दे दी. किसको छूट दे दी? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आने के लिए मार्केट के अंदर. पहले पब्लिक सेक्टर ही था, अभी प्राइवेट सेक्टर को आना है तो आ सकते. सेकेंड इज अ प्राइवेटाइजेशन विच दे डिड, दैट इज मेकिंग द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जो उन लोग से हैंडल नहीं हो रहा है, जो फेलियर हो जा रहा है, जो डेफिसिट में पैसे लॉस में जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दो, उसको प्राइवेट बना दो, उसको बेच दो प्राइवेट कंपनी को, जिससे वो कंपनी ऊपर आ सके और गवर्नमेंट के पास पैसे आ सके. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल, दैट मच हैंडलिंग पावर नहीं था पब्लिक सेक्टर के पास. देन कम्स योर ग्लोबलाइजेशन. मेक ओपन योर, जो भी गुड्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ओपन कर दो टू दी वर्ल्ड लेवल. टू दी वर्ल्ड लेवल मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सेलिंग करो, जिससे हमको फॉरेन इनकम बढ़े. बिकॉज वी वर डेफिसिट इन फॉरेन ट्रेड ओनली. मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर ही हम डेफिसिट में थे. तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इनकम आएंगे, हम वर्ल्ड के ऊपर ओपन हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा फायदा हो. बिकॉज इंडिया इज़ हैविंग अ गुड पॉपुलेशन, लेबर से ज़्यादा भरी हुई कंट्री है, and in that so many skill things can be learned and it is been exported. So in that the major decisions were taken for this LPG as well as FDI. FDI means foreign direct investment. उसके बारे में पूरा एक टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. So this reforms were being made for this particular three categories, and in that your liberalization and globalization has been deducted from this particular टॉपिक, मीन्स ये सिलेबस से. तो इस वजह से मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन पे आता हूँ. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन. लिबरलाइजेशन में छूट छाट दे दी, मतलब थोड़े बहुत नॉर्म्स चेंज कर दिए. पब्लिक सेक्टर एंटर कर सकता है मार्केट के अंदर, अपनी बिजनेस बना सकता है. क्लियर. सो मेनी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एक्ट्स बना दिए, जो पहले सिर्फ फ्यू पब्लिक सेक्टर हैंडल कर रहे थे लिबरलाइजेशन में. प्राइवेटाइजेशन मीन्स व्हाट? प्राइवेटाइजेशन इज मेकिंग, और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, when governments are not able to handle, lets them make it privatization. And this is the same thing which is currently happening in our country. At current scenario, this is what is happening. So many public sector undertakings are becoming private. So privatization is a process of introducing private ownership in publicly owned enterprise. Publicly owned enterprise मतलब वो पहले से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कॉर्पोरेशन है. This particular government corporations are now sold to the private investors. This private investors will purchase and they become private companies. So that is what privatization. So this increase what the private sector, we can say the scale of private sector will increase, and the government ownership companies will be purchased by the private persons or private individuals. तो ये इससे क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा. प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो वो लोग ज़्यादा एडवांसमेंट में, अच्छे क्वालिटी से, अच्छे काम से स्पीडीली वर्क करेंगे. तो ये सब चीज़ हो सकती है. जैसे गवर्नमेंट में इतना लेथर्जिक वर्क होता है, वो नहीं होगा, वो बात वैसे वाले सेक्टर की है. नाउ अगेन इंडिया के अंदर वी फाइंड दैट फ्रॉम 1947 टिल 1990 ओनली गवर्नमेंट सेक्टर्स वर देयर. ओनली गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम थे, नॉमिनल थे. एंड इन दैट व्हाट हैपेंड दैट कि ज़्यादा स्कोप नहीं था, and so many government projects were failed.
even the salary scale which you find that time was very less given by the government compared to the private में उससे अच्छा salary scale था. So this is where you find that this particular public sector which are managed by the state government are now sell out to the private individuals. So privatization का again वापस एक meaning बोला कि it is a process of transferring the ownership. हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर का जो ओनरशिप है वो किसको दे रहे हैं, प्राइवेट को दे रहे हैं. मतलब वो कुछ पूरा बिग बेच दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, आइदर फुल्ली और पार्शली. फुल्ली और पार्शली मतलब पूरे का पूरा दे देंगे, नहीं तो पार्शली पेमेंट्स के अंदर उन लोग को थोड़े बहुत पैसे मिलते जाएंगे. किसको, उन लोग को मतलब गवर्नमेंट को. क्लियर. सो दिस इज हाउ हैपेंड. उससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्राइवेट सेक्टर, एनी प्राइवेट बैंक और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे डू देयर वर्क विद द एवरीथिंग, एक्सपर्ट नॉलेज, वेरी क्लीन अकाउंट्स, एवरीथिंग. तो उन लोग का काम स्पीडीली होता है. वेर इज व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, द सम और दी अदर क्लासेस दे आर बिन लेथर्जिक, नहीं तो वो थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं, इतने अच्छे से काम करते नहीं हैं. अगेन प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन. प्राइवेटाइजेशन कौन से वे से होता है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन फाइंड दैट प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन. जो देयर आर 3 वेज. फर्स्ट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. पहले डिसइन्वेस्टमेंट कर. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उसको डायरेक्टली दे दो कि भाई अभी ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट का कंपनी नहीं रहेगा, उसको हम बेच देने वाले. सेकेंड, बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ रिजर्व इन्वेस्टमेंट. मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैं बोलता हूँ कि सम ऑफ द प्लेसेज आर रिजर्व फॉर ओनली गवर्नमेंट. बहुत सारी चीज़ें उन लोग ने अंडरटेकिंग ली थी कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर नहीं आ सकता, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर हटा दिए गए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली लिबरलाइजेशन के अंदर वो सारे नॉर्म्स हटा दिए, तो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर घुस के अपना एक मार्केट बना के कैप्चर कर सकता है. सो यू फाइंड दैट कि सम ऑफ द एरियाज विच वर रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देमसेल्फ, फॉर गवर्नमेंट ओनली, नाउ बीन ओपन्ड एंड इट इज़ बीन गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर. नाउ investment can be done in private sector. Thirdly, by establishing PPP, triple P, that is public private partnership. Public private partnership means what? You find here public private partnership means some of the big heavy projects, some of the, like for example airports ही बनाना है. This public private partnership is there in your OCM chapter 7. Okay, last topic most probably last or last second topic PPP, which is तुम लोग को reduce syllabus में निकाल दिया गया. But PPP is stands for public private partnership, where some of the government big organizations, जैसे airports, तो गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स है, नहीं तो बहुत सारे लाइक रोड्स है, some of the big infrastructures of government are made by private companies. Investment is done by private company, made by private company, but after that, after few years or after few टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद वो ओनरशिप किसको दे देते हैं. दिस ओनरशिप इज बिन ट्रांसफर्ड टू, वी कैन से, पब्लिक कंपनी, एंड दे कम्स अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. सो दिस इज हाउ दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे ही बने कि एयरपोर्ट्स का वो जो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ जो लगते वो गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, तो वो प्राइवेट सेक्टर को देंगे, पार्ट पेमेंट्स में प्राइवेट सेक्टर को देंगे, बनाने के लिए देंगे. एंड आफ्टर दैट पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, उसको ओनरशिप ले ले. आफ्टर फ्यू ईयर्स it will allow few years for private sector to run, and then after this all things is been taken up by the thing. तो यहाँ पे ऐसे चाले प्रोजेक्ट्स थे, तो पीपीपी पार्टनरशिप करा कि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट हैंडलिंग, गवर्नमेंट बिग ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं. लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो है वो बाद में किसको देंगे, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, बाय रिड्यूसिंग द रिजर्व एरियाज फॉर एंड ओपनिंग द न्यू रिजर्व एरियाज फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेटर कर दिया. एंड देन आफ्टर पीपीपी इस्टेब्लिशिंग कर दो भाई पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ में मिलके ये बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो बड़ा सा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर दोनों का हिस्सेदारी होगा. सो दिस इज हाउ ट्रिपल पी कम्स. नाउ लेट्स लर्न दिस प्रोसेस. ये जो 3 वेज है उसको एक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ये फर्स्ट वाले लेक्चर में ही. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वेरी फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट. सो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिड्यूसिंग, मतलब ये पूरा हम बेच दे रहे हैं, इसका इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट में किया था वो पूरा वापस ले रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट इज सपोज एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट, तो उसका रूल क्या है कि 51% मिनिमम होना चाहिए. व्हेन 51%
or more than 51% of share is owned by the government itself, it calls as a public sector company or public sector organization, public undertakings. लेकिन this particular 1% वो विड्रॉ कर देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, वो विड्रॉ कर देंगे, दे विल टेक देयर द मनी ऑफ 51% एंड वो 51% किसको बेचेंगे, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज व्हाट द सेलिंग ऑफ शेयर्स और ड्रॉबैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली बाय सेलिंग द शेयर्स, मतलब वो पूरा चीज़ बेच देंगे, 51% कोई प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे, वो बन जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ दस ये ज़्यादातर पब्लिक एंटरप्राइजेस के, मतलब पब्लिक कंपनीज, पब्लिक बिजनेस के अंदर होता है। अगेन इसके अंदर अगर समझना है तो कैसे होता है, अगर कंपनी पब्लिक अंडरटेकिंग वाला जो है वो सपोज 100% प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है और वो 100 के 100% पूरा के पूरा प्राइवेट कंपनी को बेच दे, उसको बोलेंगे कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। उसको बोलेंगे क्या, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे। देन second point talks about when only few percentage 29 to 49% of ये जो शेयर है वो पूरा बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। सो देयर इज कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट एंड देयर इज पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो पूरे का पूरा पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट पूरे का पूरा शेयर प्राइवेट को दे देंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन सम ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, that is 29 to 49%, okay, then it becomes private partial disinvestment। clear? again इसको वापस एक कंक्लूड कर दिया है कि भाई कौन सा मेजर एंड माइनर है। तो ये टाइप्स है, अगर 51% से कम है, इफ लेस देन 51% ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, 51% से कम का शेयर दिया है प्राइवेट को, उसको बोलेंगे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। एंड इफ इट्स मोर देन 51% ऑफ शेयर विच इज गिवन टू दी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर by the public sector, that it is called major disinvestment. So here we find that 51% is less than 51% of share is given, then it is minor. More than 51% of share is given to the or transferred to the private sector, it is called major disinvestment. Now so this was the first step, that is by reducing जो पब्लिक कंपनी से उसको प्राइवेट बना दो। और वो आपने देखा होगा न्यूज़ में, ये पूरा साल के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह प्राइवेट होने वाली है। इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़, गोइंग विद द न्यूज़, सो गो विद द करंट अफेयर्स न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, एज यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, लर्न इट। सेकेंड वे इज बाई टेकिंग कंट्रोल ऑफ सम ऑफ द रिजर्व एरियाज ऑफ गवर्नमेंट के जो रिजर्व एरिया थे अर्लियर, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल आओ। सो बिसाइड ओइंग पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज तो हम ले ही रहे, उसके अलावा वेयर सम ऑफ द कंट्रोल्स वर इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये थोड़े बहुत गवर्नमेंट की प्लेसेस, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज आ रही थी, उसके अंदर अभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। सो सर्टन एरियाज, सर्टन बेसिक यूटिलिटीज आर देयर, बट सर्टन यूटिलिटीज आर नॉट गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत किसी जगह पे प्राइवेट है, किसी जगह पे गवर्नमेंट है, देन यू फाइंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट स्टेट। देन यू फाइंड दैट गैस लाइन इज़ देयर, वो गवर्नमेंट है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को एंटर कर दिया। बेसिक यूटिलिटीज़ मतलब क्या, पब्लिक बेसिक यूटिलिटीज़ या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, देन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन है, देन वी फाइंड दैट योर डिफरेंट सप्लाईज जो है, वो बहुत सारे चीज़ जो बेसिकली हमको मिलते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब कुछ, तो वो आता है पब्लिक यूटिलिटीज़ में। टेलीफोनिक है, वो तो अभी प्राइवेट सेक्टर, पहले टेलीफोनिक के अंदर भी सिर्फ BSNL ही था, ओके, एंड रिलायंस वॉज देयर, बट उसके बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनी एंटर हो चुकी है। तो अल्टीमेटली वी फाइंड दैट ऑल दिस प्राइवेटाइजेशन केम आफ्टर 1991। सो देर वॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, बिकॉज मैनी ऑफ द थिंग्स इट इज़ टेकिंग इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई है। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ दिस एरियाज जो वो लोग पहले एंटर नहीं करने दे रहे थे, कौन, गवर्नमेंट एंटर नहीं करने दे रहे थे, वो पूरा चीज़ ओपन हो गया प्राइवेट सेक्टर को।
Now banking, education, communication, transportation now open for the प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन. कब ये कब की बात है? 1991 की बात है. तो उससे पहले बैंकिंग जो थे, बैंकिंग बहुत सारे थे, तो प्राइवेट बैंक्स खोलने के लिए ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती थी. एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस ज़्यादा थी, प्राइवेट वाली कम थी. कम्युनिकेशन तो 1991 से पहले मैंने जैसे बोला कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन मतलब BSNL या डिफरेंट टेलीफोन बूथ्स जो गवर्नमेंट के अंदर ही होता था. देन ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज है. देन आफ्टर यू फाइंड दैट एयरवेज, you find this particular buses are there, BRTS. So all this were in the government. Private वाले बहुत कम चलते थे. Now they made that even private sector can enter, and after that only we find that from 1991 this foreign companies came. यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वजह से लिखा है बिकॉज वी अलाउड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इफ फॉरेन कंट्रीज वांट टू इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट्स दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट फॉर 49%. Then after the policy was made, more than 49% also they can invest. So you find that 49% is a major thing which foreign countries से हम receive कर सकते हैं, foreign enterprises से हम receive कर सकते हैं for the opening. So this was the second step. थर्ड क्या हुआ कि एटॉमिक एनर्जी, सम ऑफ द थिंग्स वर नॉट गिवन. जैसे एटॉमिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, पावर स्टेशंस वगैरह है. देन सम ऑफ द मिनरल, जो माइनिंग्स है, मिनरल्स ओवर वाले जो चीज़ है जो एटॉमिक एनर्जी से निकालते हैं, यूरेनियम वगैरह, डिफरेंट जो भी केमिकल्स है, जो अच्छे अच्छे केमिकल्स या जो भी है बेसिस है वो निकालते हैं वो. रेलवे रिजर्व था, लेकिन अभी प्राइवेटाइजेशन पे चला गया. आप देखो थोड़ी बहुत आगे जाके भी शायद तक हो ही जाएगा 100%. बट पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस इज स्टिल विद द वी कैन से public, or we can say with the government itself. So postal income is totally of government income and government के अंदर ही रहेगा. But I don't find railway बहुत सारी ट्रेन प्राइवेट हो रही है, आगे जाके देखते क्या होता है. We cannot say anything again. So this was the third thing, that some of the things were not given except this particular thing. कौन सी? जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वॉज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इन इंडिया. उससे क्या होगी, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारे कंट्री का इनकम बढ़ेगा. दो द प्रॉफिट इज अर्न बाय द फॉरेन कंट्री बट इनकम इज हियर. सो आवर पीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एज वेल एज नेशनल इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज. नाउ देन कम्स दी राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर. कैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि इट इज़ जनरल इंफॉर्मेशन इट इज़ गिविंग देयर. वी फाइंड दैट द पब्लिक सेक्टर वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991. बट जैसे इंक्रीज होना था, जैसे उसका रिजल्ट आना था, वो फेलियर हो गया. जो गोल अचीव करना था वो गोल अचीव नहीं कर पाए. सो दैट्स वाई वी फाइंड दैट द राइज ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट दैट मच. अगेन वी फाइंड दैट अगर देखा जाए तो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च 1951 की बात करें तो देयर वर ओनली 5 पब्लिक सेक्टर विच वर बिन देयर एंड दैट वाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट विच बिकेम, वो इंक्रीज हो चुके. कितने इंक्रीज हो गए 233 इन 1990. अगेन 217 कम हो चुके हैं थोड़े. 1990 के बाद थोड़े पब्लिक सेक्टर्स कम हो गए. क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया. 217 हो गया 2010 के अंदर, एंड अगेन 300 हो गया इन 2050. सो अल्टीमेटली वी फाइंड दैट दिस the goal which should be achieved by the public sector was not achieved that much, and that's why we find that public sector ओनरशिप वॉज ट्रांसफर टू दी प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप. इट वॉज गिवन कि वो लोग हैंडल ही नहीं करो, उन लोग के पास इतना मैन पावर ही नहीं था, इन लोग के पास इतने चीज़ों टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी. इस वजह से उन लोग ने ये सब किया. क्लियर? सो आई होप यू गेट ओवरऑल पॉइंट. इफ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टाइप, you can just call or message me on my number. Clear? By the way, only privatization and process of privatization you are having, and next class we are going to learn about your foreign direct investment, foreign direct institutions. Okay, foreign institutional investment है FII, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे थोड़े बहुत. Clear? So liberalization, globalization is not there for your syllabus. Clear? चलो, till then thank you. Write down your notes.